Good morning, ma'am. Good morning, class. How are you all? Morning, ma'am. Good morning. Good morning, Sounding- ma'am. Sounding so fresh. Good morning. Mehak, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. good morning, Beta. Good morning, ma'am. I hope you will be regular now to the classes. Good morning, ma'am. Good morning, Yes, ma'am. Mehak. Yes, ma'am. Hmm. Okay. Let us wait for some more time so that everyone joins. Good morning, ma'am. Good morning, Beta. So enjoyed your holidays, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. How much? Huh? I'm very much. Too much fun. Yes, ma'am. That's really good. So what is better, having holidays at a stretch or having five days off in the initial, in the beginning of the month? Class? Ma'am, beginning Ma'am, of the having month. 5 days holidays. 5 days holidays? Yes, ma'am. Ma'am, 10 days holidays. 10. Ma'am, at least 10 days, ma'am. But then Yes, these 10 ma'am. days will be over within 3 months. But five days you are going to enjoy for 6 months. Isn't it? Yes, ma'am. Okay. Om Sharma, how are you? Yes, ma'am. Good. Good. I hope Yes, you ma'am. have completed your backlog of the work, of the videos and audios, everything. Yes, ma'am. Yes? Are Yes, you ma'am. updated? I have completed. Okay. Are you updated with what we are doing? Yes, ma'am. I'm not right now, but I have covered whatever you have told. Okay. That's very good. Okay. Just give me a minute. Ma'am, we will do geography. Hanji Bitare, very good. We will do geography only. I think very few topics are left now, right? Yes, Yes, Which ma'am. chapter, ma'am? Hanji, Ma'am, sugar textile. Ma'am, sugar Ma'am, textile. of we will- which chapter? Sugar industry. Sorry, ma'am. Sugar industry. we were on. Sugar industry, ma'am. we will- Ma'am, please share the screen. Sharing beta. Give me a second. Just a minute, huh? I have to take the attendance also. Okay. Okay. बेटा एक चीज हमें आप लोगों से पूछनी थी, which I am not able to get. Many of you have written, where in the question that was asked about the ethnic composition of Sri Lanka. बहुत सारे बच्चों ने 2-3 नाम ऐसे लिखे हैं जो कि बुक में कहीं स्पेसिफाई नहीं करे गए हैं. So I am wondering, where did you get this answer from? हाँ, बताइए. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. No. हाँ जी, तो बताइए हमें. अच्छा, ये जो जितने भी टेक्नो सेवी लोग हैं, आप हमें ये बताओ, इस पीडीएफ को अगर हमें स्क्रॉल करना है तो कैसे करा जाएगा? आई एम नॉट एबल टू गेट इट.
मैम राइट साइड में स्वाइप करिए एक बार. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके बेटा, ओके, थैंक यू. Fine. We were on which industry? Please tell. Sugar. We have to start sugar Ma'am, sugar industry. industry. तो झूठ हो गया. We have to start from sugar industry. Yes. Yes. Okay. बेटा अब what I want is कि please आप लोग अपनी books लेके बैठा करो, because whatever questions I would like to give, if you have the books with you, it will be easy for you to note it down there and then. Right? Right, class? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Though I am sharing it on the screen, but still you make sure that you have the books with you, जिससे कि instant questions अगर हम आपको दे रहे हैं तो you can easily copy it down from there. Okay? We are on. Sugar industry. I think we started with this, no? Yes, ma'am. You have explained. I think ये हमने इसका फर्स्ट पैरा पढ़ लिया था. हमको इन रिसेंट इयर्स से पढ़ना है, राइट? राइट क्लास? Ma'am, Yes, shall we ma'am. start with sugar Yes, ma'am. industries? जी बेटा. धनंजय क्या कह रहे हैं आप? Ma'am, I'm not saying. Excuse me, ma'am. Yes बेटा. Can we start from starting? Can we start from the beginning? Beginning of Yes, ma'am. sugar From industry. sugar industry. I don't mind. I don't mind at all. चलिए. Fine. हमने I think explanation वाला पार्ट अपने कर दिया था क्लास. Yes, ma'am. You have explained. Okay. So only the reading part is left. Fine. Yes, ma'am. चलिए. Can we have Akansha Yadav reading? Yes, Akansha Yadav. Yes, ma'am. Read. Sugar industry. It India stands second as a world producer of sugar, but occupies the first place in the production of gur and khansari. The raw material used in this industry is bulky and in haulage. Ma'am, what is written? Ansari. No, ma'am. After it. Haulage, it's sucrose content reduces. Sucrose content reduces. Where should the miles be ideally located? In 2010 to 2011, there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Gujarat, along with Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. 60% miles are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal in the nature, so it is ideally situated to the cooperative sector. Can you explain why this is so? In recent years, there is a tendency for the miles to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane producer here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensure a long crushing season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. Major challenge बेटा एक मिनट रुको include आकांक्षा. the आकांक्षा वेट. बेटा एक क्वेश्चन लिखो अब आप इसके लिए. क्वेश्चन है आपका, what are the major challenges of the sugar industry? What are the major challenges
of the sugar industry? लिखा है question? Yes. Yes, Now- ma'am. Yes, ma'am. Fine. Can we have Priyanshu telling the answer to this question? Ma'am, major challenges faced by sugar industry. हाँ बताओ. I'm telling. Then Yes, ma'am. Finding, ma'am. anybody else? Excuse me, Ma'am, ma'am. transport beta. delay in cane to factories. Yes, who said excuse me? Ma'am, Yes, can I? Devansh. Yes, Ma'am, I Devansh. Devansh. Yes, Yes, can I? Devansh. Ma'am, बताइए. major challenges faced by the sugar industries are seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the usage of bagasse. Baggage. ठीक है. मैम अगर मैम ये आंसर हम पॉइंट्स में लिखें तो मैम बेहतर रहेगा मैम. बेटा आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे. Can you see the screen? See major challenges. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Major challenges Yes. include the seasonal nature of the industry, 1 point. Old and inefficient methods of production, 2nd point. Transport delay in reaching cane to the factories. Sugar cane की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग. Then need to maximize the use of bagasse. ठीक है. These are the 4 important points that you need to know. And what is the 4th point? ठीक है. Right class? Yes, ma'am. मैम व्हाट इज द मैम ये बैगेज क्या है मैम? बैगेज नहीं समझ में आ रहा. आप बताओ. हमने पिछली बार बताया था बैगेज क्या होता है. क्लास एनीबडी हु रिमेंबर्स? बताइए. Ma'am, what? What is baggage? क्योंकि हम आपको स्क्रीन पे दिखाएं क्या होता है बैगेज. Ma'am, it is help to बताओ बताओ. Ma'am, it is help in produce heat and electricity in sugar mill. बैगेज. It's a pulpy material. बैगेज. मैम इन विलेज लैंग्वेज में हम इसको मैम वो कहते हैं गन्ने की करने की. पताई पताई ऐसे करके कुछ कहते हैं मैम गांव में. हाँ बेटा वही मैम चीज बहुत होती है. जब हम ये हाँ ये पता है क्या होता है. ये पता है मैम क्या जब होता है? गन्ने को छोला जाता है मैम उसे कहते हैं. हाँ ये जो इसका जिसमें से जूस निकाला जाता है जो ड्राई पल्प होता है इसका. Ma'am, dry pulp pipe. यस मैम यस मैम. ड्राई पल्प जो होता है वो होता है बैगेज. ठीक है. जिसमें से सारा का सारा शुगर केन का जूस निकलता है. ठीक है. ये इस पे हम लिख नहीं पा रहे हैं गूगल पे ना. मैम यू हैव ईटन एनी टाइम मैम शुगर केन? बेटा वेरी मच. आई लव शुगर केन अ लॉट. व्हेन आई वाज इन मैम आप छील लेती हैं दांतों से? बिल्कुल बेटा. आज आज इस उम्र में भी छील लेते हैं. बिल्कुल आराम से. हमारे बच्चे नहीं छील पाते. हमारे बच्चे नहीं छील पाते हैं. हम छील लेते हैं. ये तो हालत है आजकल के बच्चों की. कुछ खाते हैं नहीं हेल्दी तो कैसे छील लेंगे बताओ. कहते हैं दांतों में दर्द होता है नहीं छील पाते हैं मम्मा. हमने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है ये तो. चलिए फाइन. ये बैगेज क्लियर हो गया ना बेटा आपको देवांश? यस मैम क्लियर हो गया. बहुत सारे बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं. क्या चक्कर है? only 23 are there. We have 35 students now. Shelly, how are you doing now? Fine? Yes, ma'am. Okay.
चलो, ये शुगर केन इंडस्ट्री जो होती है बेटा, ये इसके बहुत सारे चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो, क्योंकि ये सीजनल इंडस्ट्री होती है। सीजनल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि साल भर यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे साल के सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक मंथ्स में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो जो लोग शुगर मिल्स वगैरह में जो डिप्लॉयड रहते हैं, वो साल के सिर्फ कुछ महीने ही अपने आप को ऑक्यूपाइड रख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि शुगर केन एक ऐसी फसल है जो कि साल में सिर्फ एक बार जो है पैदा होती है ना? ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी। Ma'am. अब दूसरा Yes, दूसरा जो ma'am. है, जो हमारे कंट्री में जो हम जो टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, ये यदवेंद्र आए थे, अब चले गए, चलिए। जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो हमारी एक तो बहुत पुरानी है और इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आप में से किसी ने देखा हो शुगर मिल वगैरह में जाके प्रोडक्शन का प्रोसेस, आप देखो कि कुछ जगहों पे आज भी वही पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, पुराने तरीके से ही जो है प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। जबकि अगर आप देखो तो आज के टाइम में इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स आ गई हैं, जिसमें कि आपको शुगर केन का एक एक जो ड्रॉप होता है जूस का, वो आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है? और जो शुगर केन का जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने सुना है शुगर केन का जो वो स्ट्रॉ बच जाती है, उसको यूज किया जाता है एज फ्यूल। पहले के टाइम में शुगर केन के जो बाय प्रोडक्ट्स होते थे उनको जो है ऐसी वेस्ट फेंक दिया जाता था। पर आज की डेट में क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी डेवलप हो गई है, हमें ये पता चला कि भाई शुगर केन के जूस निकालने के अलावा भी जो है उसकी उसका जो आपका जो वेस्ट बच जाता है उसको हम काफी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। राइट? Yes, ma'am. चलिए, एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू एक्सप्लेन इन दिस? इसके इस उसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ द शुगर इंडस्ट्री, और एक क्वेश्चन जो आपको कॉमनली आता है वो ये आता है दैट व्हाई द शुगर इंडस्ट्री, चलो हम लिख देते हैं ये, व्हाई द शुगर इंडस्ट्री is ideally suited to the cooperative. Sector. I hope you all have written this question. Written this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What should be the answer to this question? Can you tell? Ma'am, because it is seasonal in nature. Because it is seasonal in nature, and moreover these cooperatives, those who are there, they have got very good links with the village people. So whatever the good amount of sugarcane that is produced, that can be sold to these, that can be collected by these cooperatives, and later on it could be provided to the industrial sector where the sugarcane industries are located. Right? Right, class? Yes, ma'am. Chaliye. Now coming to this mineral based industries. Chaliye. Can we have shall I rub these questions if you have written? Yes, ma'am. Beta, I have underlined certain lines. Please underline them in your notebook, in your book as well. Done? हेलो मैम, ओ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी देवांश, बोलो बच्चा। मैम यहाँ पे मैम नंबर्स दिए हैं, 662 शुगर मिल्स मैम। 662 फिगर में
मैम 2010 and 11 there were मैम कुछ बुक्स में मैम डिफरेंट दिए मैम, अगर एग्जाम्स में आते हैं तो मैम ऐसे हम लोग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे मैम? बेटा एग्जाम्स में क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे? एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आएंगे, नहीं मैम एमसीक्यूज में मैम आ सकते हैं ना ऐसे मैम हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल नंबर्स बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपको आ बट मैम सकता है, सम हाँ पुरानी बुक्स में मैम कुछ डिफरेंट देते हैं मैम, और नई बुक में मैम कुछ अलग देते हैं मैम। नहीं देखो ऐसा है कि आपको जो भी लेटेस्ट डाटा होगा आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है ना? जैसे अगर आप आज की डेट में Okay, ma'am. देखो, रुको हम बता रहे हैं आपको, अगर आप आज की डेट में देखो एज पर 2020 तो हमारे कंट्री में 408 शुगर मिल्स हैं, ठीक है? राइट देवांश? यस मैम। ठीक है, ओके, तो मैम ये करंट हम लोगों को मैम करंट वैल्यूज हैं जैसे मैम, तो हम लोगों को बताऊंगी, गूगल हाँ। से सर्च करके, नहीं वो तो हम आपको बता तो रहे हैं कि एज पर 2020 देयर आर 408 शुगर मिल्स। तो मैम एग्जाम्स में जैसे मैम 408 भी आया और 662 भी आया मैम, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है फिर। देखो ऐसा है ना, कई बार क्या होता है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है डाटा 10 और 11 का, तो हो सकता है आपको एमसीक्यू आए एज पर 2010-11 हाउ मेनी शुगर मिल्स वर देयर इन द कंट्री, यस मैम, ओके, राइट? मैं जस्ट देन इट विल करेक्ट, यस मैम। देन यू हैव टू गो फॉर 662, अगर आता है एज पर 2020 देन यू हैव टू गो फॉर 408 शुगर मिल्स। एम आई क्लियर? ओके, ठीक है, यस मैम। चलिए कमिंग टू दी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अगर हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, देखो ये जो इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या हुआ? वो इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, राइट? राइट, right class? Now Yes, ma'am. if we talk about the mineral based industries, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है हमारे कंट्री की, ठीक है? ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज दैट वी हैव, चाहे वो हैवी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपकी लाइट इंडस्ट्रीज हो, चाहे, क्योंकि सारी की सारी मशीनरी जो प्रोडक्शन होती है वो आपकी आयरन और स्टील से ही होती है, तो जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर मशीनरीज, राइट? राइट क्लास? Yes, ma'am. चलिए एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम कैन वी से दैट मैम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी मैम? मैम क्वेश्चंस मैंने देखे थे मैम ऐसे गूगल पे, मैम पूछ रहे थे ऐसे why we are recognized that iron and steel industry as the backbone of our Indian economy? क्या दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा आप? मैं ये कह रहा हूँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग अपनी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन मानते हैं। क्यों मानते हैं आप बताओ, आप हमें बताओ क्यों मानते हैं? Anybody in the class who would like to answer this question? बताओ बेटा, anybody in the class? प्रियांशु, अग्रिम, आकांक्षा, सान्या, आनंद? Ma'am, iron and steel industry is known, ma'am, it is known as backbone of India because all the basic industries like ma'am small industries and everything like mostly everything is made up of iron and steel only. That's why. Exactly. See, iron and steel industry is considered as the backbone of the Indian industry. Reason being because iron and steel industry produces several other goods, machineries for the other industries. अगर आप agricultural agro based industries की बात करते हो देवांश, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी
मशीनरी यूज होती है वो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री तो मैन्युफैक्चर करके देती है। फिर आपका जो जूट इंडस्ट्री हुई, चाहे आपकी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुई, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो भी मशीनरी बन के आती है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही बन के आती है। ठीक है, तभी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है या बैकबोन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, चलिए कैन वी हैव, चलो ठीक है, हम ये आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले तो आपका जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बेसिक फीचर्स क्या हैं? एक तो ये हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर तरीके का गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। बी इट हैवी इंडस्ट्री में हैवी मशीन्स जो होती है उनका प्रोडक्शन अगर होता है तो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री करती है। अगर आपका मीडियम वेट इंडस्ट्रीज जो है, मतलब मशीनरीज जो है, वो भी आपका आयरन एंड स्टील ही प्रोड्यूस करता है। अगर वो लाइट वेटेड है तो भी वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपका जो बल्कि रॉ मटेरियल है वो सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ही यूज होता है। ठीक है, बल्कि रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि आपका ये देखो यहाँ पे एक आपको टेबल दिया गया है बेटा, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे वो लाइमस्टोन हो, चाहे वो आपका कोक की बर्निंग हो, चाहे वो जो आपके पिग आयरन होता है, पिग आयरन भी एक तरीके का आयरन होता है जो कि यूज किया जाता है। फिर चाहे वो मेटल की शेपिंग के लिए हो, चाहे वो स्टील मेकिंग के लिए हो, हर चीज में सारा का सारा हैवी मटेरियल यूज होता है। इसीलिए इसको जो है बल्कि रॉ मटेरियल जो है वो यहीं पे जो है यूज होता है, इन्हीं इंडस्ट्रीज में यूज होता है। दूसरा, दीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दे आर वेरी क्लोज टू दी मिनरल रिच एरियाज। अगर आप देखो हमारे कंट्री की मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे कन्फाइंड है पता है आपको? किस स्टेट के पार्ट में है? झारखंड। झारखंड में, क्योंकि सबसे ज्यादा कोल माइंस जो है हमारी आपको झारखंड में मिलेगी, और आयरन डिपॉजिट भी आपको झारखंड एरिया में ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, देन सब जितनी भी हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स में है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर जो है वो प्रोडक्शन करती है। और सबसे ज्यादा जो है इनका जो लोकेशन है वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, छोटा नागपुर। बट मैम टिस्को तो वो मैम आई थिंक टाटा ऑन करता है मैम। हाँ बिल्कुल, देखो कुछ ये टिस्को वगैरह तो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज हैं बेटा, ये तो आजादी से पहले की इंडस्ट्रीज। ठीक है, यस, ठीक है, okay. और मैक्सिमम इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर है, मतलब वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एरियाज की, तो आप देखो बिहार, ये आपका छत्तीसगढ़ में भिलाई में जो है सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा में राउरकेला में होता है। झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर में होता है। वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर और बरनपुर में होता है। फिर कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो भद्रावती और विजयनगर में होता है। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो सलेम में होता है। ठीक है, ये देखो आपका ये सलेम हो गया, भद्रावती हो गया, विजयनगर हो गया। ठीक है, फिर आपका ये भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, जमशेदपुर बोकारो आपका झारखंड में, बरनपुर और दुर्गापुर हो गया आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ठीक है बेटा, राइट? Yes, ma'am. फाइन, Yes, ma'am. यस ओके। उसके बाद अगर आप आते हो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, तो उसमें हम बात करते हैं कि आपका जो है जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, जहां जहां पे भी ये इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी गई हैं, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, राइट? देन the cost of iron ore that we have, it is quite low because the industries are located in those regions where the availability of iron ore is there. Then the लेबर, अगर आप देखो जैसे जितने भी एरियाज जिन जिन जगहों पे ये आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं वहां पे इजी लेबर अवेलेबल है। वेस्ट बंगाल देखो तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अगर आप बिहार देखो, झारखंड वगैरह देखो, तो यहाँ पे भी डेंसिटी, यहाँ पे भी जो है चीप लेबर की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। देन देयर इज अ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, तो जितनी भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज का जो वो है मार्केट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ये आपका रेलवे से भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये रोडवे से भी कनेक्टेड है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होती है,
ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है क्योंकि इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है। दूसरा, जो डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन जब से हमारी सरकार ने खोला है, तो इन इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिला है उसकी वजह से। ठीक है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इस इंडस्ट्री के Yes. ड्रॉबैक्स क्या हैं? मतलब जो प्रॉब्लम्स ये इंडस्ट्री फेस करती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये फेस करती है कि हाई कॉस्ट एंड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। कोकिंग कोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस जो आपका जो ये स्टील जब मैन्युफैक्चर होता है ना, उसके मैन्युफैक्चरिंग में पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, जो ब्लास्ट फर्नेस में जो कोक चाहिए होता है, ये कोक दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है इसमें, स्लैग इज रिमूव्ड एंड कोक इज बर्न टू हीट द ओर। तो ये जो कोक की अवेलेबिलिटी है ये बहुत कम है, इस वजह से भी जो है ये इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस करती है। दूसरा, बहुत ज्यादा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इस वजह से भी देयर आर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दिस इंडस्ट्री। देन द इरेगुलर पावर सप्लाई, ये इरेगुलर पावर सप्लाई ये हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि देयर इज इरेगुलर पावर सप्लाई इन दीज रीजन्स वेयर these industries are established. फिर poor infrastructure, भाई जहां जहां पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है। अगर आप बात करो अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आप लोग के स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट है। पूरे बरेली में अगर आप देखो, नो स्कूल हैज गॉट सच अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमारे स्कूल का है। डू यू अग्री और नॉट? Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. Yes, आप बहुत सारे ma'am. स्कूल्स गए होगे, बहुत सारे स्कूल्स गए होगे, पर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल का है वैसा मुझे नहीं लगता है कि किसी और स्कूल में है। राइट? तो कुछ कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ ऑफ एनीथिंग। ठीक है, राइट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये तो था अबाउट द फीचर्स, एरियाज, factors contributing to the growth and the problems faced by the iron and steel industry. I hope this much is clear and understood to all of you. Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, so can we have Mehak reading? Mehak, are you there? Yes, ma'am. हाँ, read बेटा. Mineral-based industries. Industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral-based industries. Can you name some industries that fall in this category? Iron and steel industry. The iron and steel industry is the basic industry since all the other industries have heavy, medium, and light depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephone, scientific equipment, and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as an index of country's development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation costs. Iron ore, coking coal, and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be ideally located? Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. In 2016, with 95.6 million tons of crude steel production, India ranked third among the all crude steel producers. It is the largest producer of sponge iron. In 2016, per capita consumption of steel in the country was only around 63 kg per annum against the world average of 208 kg. 100 or 100? Mo- Yes. Most of the public sector undertakings markets their steel through Steel Authority of India. In the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel
Today, China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantages this region had for the development of this industry. These includes low cost of iron ore or high grade raw materials in proximity, cheap labor and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential, largely due to high cost and limited availability of coking coal, lower productivity of labor, irregular supply of energy, and poor infrastructure. We also import good quality and steel from other countries. However, the overall production of steel is insufficient to meet our domestic demand. Liberal, Liberalization and liberaliz- foreign direct investment. Yes, yes, and, can you? foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more uh, competitively. Compatibility. Ma'am, done. Yes, ma'am. Computatively, more computatively. Yes, ma'am. Okay. I think Yes, the ma'am. class is, we have very less time left. Now tell me anything in this not understood or clear. Beta, your attendance would be taken in the next period that we have, right? Right, class? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Beta, बताइए anything that you have not understood in this? Is it all clear and understood? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. I think as per the new curriculum that you have, this aluminum smelting is not part of your syllabus, and the cement industry also. Right? So we'll be reading from Chemical industry. no, we will be reading from the. Hey, beta, up till the cement industry, these things you don't have content. We have to Okay, read ma'am. From ma'am, we will read from automobile industry. Automobile industry. हाँ ठीक है हाँ हम ऑटोमोबाइल से पढ़ेंगे फिर भी आई जस्ट कंफर्म इट कि एग्जैक्टली क्या है एक मिनट दो बस आई होप यू पीपल हैव कंप्लीटेड योर वर्क till date whatever we have done. Yes, ma'am. Huh? Yes, ma'am. Anything that we have done in the class but you people have not done, please do it, because as per the government guidelines, schools are going to open and you all are supposed to give your work, right? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Happy that the schools are opening now. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Finally Anand will get bike to ride, huh? Anand? Yes. 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 Anand, don't forget that petrol prices are going high. Exactly. Okay, talking about this manufacturing industries. Acha, you have everything. No part is deleted. Okay? So we'll be doing everything of this chapters. Even the cement industry is also part of your syllabus now. Earlier it was not. Okay? So we'll be doing that as well. Chaliye. Fine, class. So in the next period, I'll be giving you some questions from this chapter for the earlier topics that we have completed.